Students, next we discuss about image formation in spherical mirrors. Image formation in spherical mirrors. Image formation in spherical mirrors. So ध्यान देंगे. First we discuss about image. What is image? So when number of rays starting from a point when a number of rays starting from a point after suffering reflection or refraction, it actually meets or converge, or appears to meet or diverge at second point. Then second point is known as image of first point. Then second point is known as image of first point. So ध्यान देंगे, जब भी कोई नंबर ऑफ रेज किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और स्टार्ट होने के बाद अगर वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को सफ़र कर रही हैं, आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इफ़ दे एक्चुअली मीट, क्या हो, या तो वो एक्चुअली मीट करें या वो अपीयर्स टू मीट हों. इफ़ दे एक्चुअली मीट दे विल फॉर्म अ इमेज दैट इज़ नोन एज रियल इमेज, एंड इफ़ दे appears to meet then they will form the image that is known as virtual image. So if they actually meets or if they appears to meet at a second point, then that second point is known as image of first point. उस second point को क्या बोला जाएगा? Image बोला जाएगा first point की. So two types की image हैं. कौन कौन सी? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. रियल इमेज और वर्चुअल इमेज. सो रियल इमेज कौन सी है और वर्चुअल इमेज कौन सी है देखेंगे. रियल इमेज एंड सेकंड इज वर्चुअल इमेज. सो रियल इमेज कौन सी इमेज? रियल इमेज. सो रियल इमेज when the number of rays after suffering reflection or refraction, if they actually meet, अगर क्या हो, actually meet करें at second point, then that second point is known as image of the first point. Virtual image कौन सी है? अगर if they appears to meet, then the image is known as virtual image. उस image को क्या बोलेंगे? Virtual image बोलेंगे. For example, the image formed by overhead projector. Image formed by overhead projector, OHP. So overhead projector जो image form करता है, that is real image in nature. और virtual image, when we see our face in the plane mirror, then image formed by the plane mirror is
virtual in nature. When we see our face in the plane mirror, then image formed by plane mirror is virtual in nature. Image formed by plane mirror is virtual in nature. So two types के images के बारे में हमने डिस्कस किया, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज. अगर रेज एक्चुअल में मीट हो रही हैं देन दे विल फॉर्म रियल इमेज, एंड इफ दे आर appears to meet then they will form virtual image. So next is image formed by spherical mirror. First we discuss about image formed by concave mirror. Two types के मिरर के बारे में हमने डिस्कस किया था, एक concave mirror और सेकंड था convex mirror. So सबसे पहले हम बात करेंगे concave mirror की, कि concave mirror की जो images हैं वो किस तरह से फॉर्म होती हैं. Image formed by image formation by concave mirror. Image formation by concave mirror. So concave mirror में जो image formation है इस तरह से फॉर्म होगी. काइंडली ड्रॉ करते चलेंगे साथ साथ में. Position of object, position of object, position of image, position of image. Next, size of object, size of image, and last one is nature of the image. So ध्यान देंगे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहाँ पे प्लेस होगी. सेकंड में हम देखेंगे कि इमेज कहाँ पे प्लेस होगी, साइज किस तरह से रहेगा और उसकी नेचर को स्टडी करेंगे. So, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज इफ़ इन केस ऑफ कनकेव मिरर, अगर कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस. कहाँ पे फॉर्म होगी इमेज उस टाइम पे, फोकस पे. जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, इन्फिनिटी पे रखा जाएगा. साइज़ किस तरह का होगा, बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज. नेचर रियल इन्वर्टेड. एक तो रियल होगी और इमेज की जो नेचर है वो उल्टी होगी. रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी एंड इट इज रियल इन नेचर. सेकंड इज बियॉन्ड सी. व्हेन position of the object is beyond C, center of curvature से अगर पीछे है object, at that time the position of the image will be between center of curvature and focus. center of curvature और focus के बीच में बनेगी उस टाइम पे इमेज. साइज जो होगी इसकी, इट इज़ डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल इन साइज. डिमिनिश्ड मीन्स वेरी स्मॉल इन साइज. नेचर इज ऑल्सो रियल एंड इन्वर्टेड. नेचर किस तरह की रहेगी, रियल और इन्वर्टेड रहेगी. नेक्स्ट एट सी, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया जाए, देन इमेज विल बी फॉर्म एट सी. इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सी पर भी बनेगी.
और इसकी जो नेचर है वो किस तरह की होगी? इट्स नेचर विल बी सेम साइज की इमेज फॉर्म होगी, और इट इज़ ऑल्सो रियल एंड इन्वर्टेड। किस तरह की होगी ये? रियल और इन्वर्टेड। So at C, position of the object, position of the image will be also at C and it will be same in size। और किस तरह की इमेज फॉर्म होगी ये? रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट इज बिटवीन C एंड F। अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए? बिटवीन C एंड F, देन इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड C and it is enlarged होगी साइज में in comparison to the object। nature is real inverted। इस तरह का नेचर होगा, रियल होगा और इट इज इन्वर्टेड। नेक्स्ट, इफ द object is placed at focus। अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया जाए? फोकस पे प्लेस किया जाए, देन इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? एट इन्फिनिटी। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी और साइज जो होगा, इट्स साइज इज हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा साइज होगा। एंड इट इज़ ऑल्सो रियल इन्वर्टेड। इसकी जो नेचर रहेगी ऑल्सो रियल और इन्वर्टेड रहेगी। नेक्स्ट, इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P। अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए, देन पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर। जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी। किस तरह की होगी ये? इट इज एनलार्ज्ड इमेज होगी, बट जो नेचर है, इट्स नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका जो नेचर है वो किस तरह का होगा? वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। सो हम देख रहे हैं कि जो लास्ट वाला केस है उसमें जो नेचर है इमेज की, दैट इज़ वर्चुअल और इरेक्ट। बाकी सभी केसेस में इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, उसमें ध्यान देंगे सभी केसेस में क्या रहेगी? इमेज रियल और इन्वर्टेड रहेगी। सो नोट डाउन प्लीज़। तो अब ध्यान देंगे कि जो इमेजेस हैं किस तरह से फॉर्म होंगी कनकेव मिरर के केस में। डिफरेंट केसेस में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम की हेल्प से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दीज इमेजेस आर फॉर्म्ड। सो फर्स्ट केस में, कनकेव मिरर के केस में, जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पे प्लेस किया गया था? व्हेन, हम कौन से स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं अभी? फर्स्ट कनकेव मिरर। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट कनकेव मिरर। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है।
उस टाइम पे जो इमेज है वो किस तरह से फॉर्म होगी इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो कौन सा मिरर फॉर्म करेंगे? कनकेव मिरर। एंड यू नो दैट द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द spherical mirror of which it forms a part is known as concave mirror. So here focus center of curvature और ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। सो जो रेज हैं वो कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से आ रही हैं। चलिए एक और बात डिस्कस कर लेते हैं साथ में कि जो रे डायग्राम की फॉर्मेशन है, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल ट्रैवल करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो अगर कोई रे डायग्राम रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करेगी तो इट पासिस थ्रू फोकस। कहाँ से पास करेगी? पासिस थ्रू फोकस, फोकस में से पास करेगी। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, लेट अस सपोज अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, उस टाइम पे it comes back in the same path, जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन। सो passes through C, passes through C। अगर C में से पास हो रही है देन comes back through same path, comes back through same path, same path, उसी रास्ते से क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। तो दो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किया। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, passes through focus, passes through C, comes back to the through the same path. If it passes through focus, focus, अगर ये फोकस में से पास होती है देन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस में से पास होगी स्ट्राइक करके। अगर फोकस में से पास हो रही है देन स्ट्राइक करने के बाद इट ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या करेगी उस टाइम पे? ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, passes through F, passes through F, then it travels parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ट्रैवल करेगी उस टाइम पे रे ऑफ लाइट। इफ ray of light strike at P, अगर P पे स्ट्राइक करे, at P पे अगर स्ट्राइक करे then it follow the laws of reflection। तो किस तरह से डेविएट होगी? it follow the laws of reflection। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस चली जाएगी बाय फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इस तरह से जो है इमेजेस वो फॉर्म होती हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है उसके इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सभी अभी हमने जस्ट इस बात पे डिस्कशन की है कि किस तरह से जो है वो रेज इमेजेस को फॉर्म करती हैं। सो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ रेज
after starting from a point, let this be object. इस object से rays start हो रही हैं, starting from a point, and after suffering reflection of light, they actually meet at a single point, this single point, and this single point is known as image. This single point is known as image. So ये जो है size of the image है a dash b dash, a b is the object. So इस तरह से जो है वो images form होती हैं in case of spherical mirrors. So first we discuss about, अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कनकेव मिरर की, कि कनकेव मिरर के केस में जो इमेजेस हैं वो किस तरह से फॉर्म होंगी. सो ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस. ध्यान देंगे इमेज विल फॉर्म लाइक दिस. Focus, center of curvature, हर एक रे ऑफ लाइट पे एरो जरूर शो करेंगे सभी रे डायग्राम. लेंस, कनकेव लेंस, पोल, कर्वेचर. तो जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी फोकस में से, let us suppose another ray coming from infinity also strikes parallelly and it also passes through focus. और two or more rays जब भी किसी particular points पे आके मिलती है then they will form image. So here you can see that these rays are forming a point size image which is very small in size, and it is real and inverted in nature. So real, inverted and point size image, point size image जो है वो फॉर्म होगी in case of concave mirror when object is concave mirror. So in case of concave mirror when object is at infinity. So next is when object is beyond C. जब object कहाँ पे होगा, beyond C, center of curvature से पीछे होगा, उस टाइम पे जो इमेज है वो किस तरह की फॉर्म होगी. ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी. सो जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे. व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी. लेट दिस इज एफ सी, और मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. लेट ए बी द ऑब्जेक्ट. प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइन होगी पासेस थ्रू फोकस, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई पास होगी, it comes back to the same path. और जहाँ पे दोनों मीट करेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी. सो लेट ए डैश बी द इमेज एंड इट्स नेचर भी. नेचर किस तरह की है इसकी, रियल और इन्वर्टेड. देख सकते हैं आप, रियल, इन्वर्टेड and diminished, small in size, diminished, very small in size. So a dash b dash क्या है इस इमेज की
जो इमेज साइज है, और नेचर जो है रियल एंड इन्वर्टेड, एंड ए बी इज द ऑब्जेक्ट. सो नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी. जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा. एट दैट टाइम जो इमेज है वो किस तरह से फॉर्म होगी, ध्यान देंगे. व्हेन ऑब्जेक्ट is at C. When object is at C. So जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है, देन दिस इज F C. और मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है C पे. देन जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, पासेस थ्रू फोकस में से पास करेगी लाइक दिस. और जो रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक करेगी, it reflects with the same angle with it strikes the pole P. That is, angle of incidence is equal to angle of reflection. ये फॉलो करेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, और जो इमेज है वो इस तरह से बनेगी. एंड इट इज ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट. जितना ऑब्जेक्ट साइज होगा सेम उतने ही साइज की ये इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी. सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड होगी. concave mirror. So next is when object is between center of curvature and focus. When object is between center of curvature and focus. Between C and F. सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा, देन इमेज विल फॉर्म लाइक दिस. लेट दिस इज F C. ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F. जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, पासेस थ्रू फोकस. और जो रे पास करेगी पोल में से या सेंटर ऑफ कर्वेचर में से बिटवीन C एंड F. सो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे स्ट्राइक करेगी, वो विदाउट एनी डेविएशन जिस पाथ से गई है सेम उसी पाथ से इट विल कम बैक. सो इस तरह से अगर कोई रे मान लीजिए स्ट्राइक करती है पोल पे, तो जिस एंगल से वो स्ट्राइक की है उसी एंगल से by following law of reflection it will trace the path and meet at a single point and image will be formed. So A B object
and this is the a dash b dash image which is real inverted है और it is enlarged साइज है इसका. सो रियल इन्वर्टेड एंड enlarged. ध्यान रखेंगे लाइन शुड बी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और एरो मस्ट बी देयर. एरो जरूर शो करेंगे सभी रे डायग्राम्स में. नेक्स्ट इज when object is when object is at focus. जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा, देन इमेज किस तरह से फॉर्म होगी देखेंगे. दिस इज पोल, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑब्जेक्ट को रखा गया है फोकस पे प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगी. रे पास थ्रू फोकस लाइक दिस और रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास होगी. और अनदर रे मान लीजिए जो पोल पे स्ट्राइक करें. सो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से इट रिफ्लेक्ट लाइक दिस एंड इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी. ये दोनों रेंज इस डायरेक्शन में जा रही हैं. सो इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी. concave mirror. सो इस रे की जो नेचर है वो किस तरह की है देख सकते हैं आप. इट इज़ रियल इन्वर्टेड एंड जो फॉर्म होगी इन्फिनिटी पे वो रियल इन्वर्टेड होगी एंड इट इज़ हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी. हाईली मैग्नीफाइड एंड इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड. किस तरह की होगी, हाईली मैग्नीफाइड एंड इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड. सो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड ये भी ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है. सो नेक्स्ट इज व्हेन object is between F and P. When object is between F and P. So जब object between focus और pole के बीच में होगा उस टाइम पे जो image है in case of concave mirror वो किस तरह की होगी ध्यान देंगे. when object is at focus and pole. चल ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा. सो दिस इज एफ सी और फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है देन फोकस और पोल के बीच में दिस इज पी, दिस इज ऑब्जेक्ट. सो इमेज जो है इस केस में वो फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर. कहाँ पे फॉर्म होगी, इट विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर. और ये जो
इमेज है इट विल फॉर्म लाइक दिस, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी इस तरह से, फोकस में से पास हो रही है, और जो रे ऑब्जेक्ट से होती हुई थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर पे स्ट्राइक करेगी वो अनडेविएटेड इस तरह से पास ऑन हो जाएगी। बट इट अपीयर्स टू मीट लाइक दिस, ये जो रेज हैं these rays appears to meet like this and image will form behind the mirror, और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, ये behind the mirror फॉर्म होगी। let A be object and its image will be A dash B dash which will form behind the mirror, behind the mirror, behind the mirror इमेज है, और इसकी जो नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल इरेक्ट। सो ध्यान देंगे पहले जो सभी केसेस थे इन केस ऑफ कनकेव मिरर, उनमें जो इमेजेस फॉर्म हो रही थी ऑल आर रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर, बट इन केस ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन focus and pole of the mirror, only then image will form behind the mirror and it is virtual and erect in nature. In all other cases image is real and inverted in nature. So note down please. So next is image formed in case of convex mirror, कि convex mirror के केस में जो images हैं वो किस तरह से फॉर्म होगी। So two important cases हैं इसमें, image formation in case of convex mirror। convex mirror की बात करेंगे। So first is when object is at infinity, when object is at infinity, जब infinity पे ऑब्जेक्ट होगा then image formation जो है वो किस तरह से होगी। when object is at infinity, so जब ऑब्जेक्ट infinity पे है then object is at infinity, let us suppose कि infinity से ये रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आपको मालूम है कि इन केस ऑफ convex mirror, in case of convex mirror जो spherical reflecting surface है it is away from the sphere, so reflecting surface is away from the sphere। अगर ये sphere है इसका center इस तरफ होगा, away from the center of the sphere, so parallel lines, और ये deviate होगी यहाँ से strike करके mirror से like this। Similarly, so let us suppose another parallel ray coming like this, it also deviate इस तरह से, and at the point where these rays actually meet, not actually meet but appears to meet,
not actually meet but appears to meet, they will form image. इसी तरह यहाँ पे जो रे होगी ट्रांसपोज इस तरह से वो डेविएट हो रही है, सो पॉइंट इमेज बन रही है यहाँ पे, पॉइंट इमेज। सो देख सकते हैं आप जो इमेज है इसकी नेचर किस तरह की है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल है और ये इरेक्ट है एंड इट इज पॉइंट साइज, और किस तरह की है ये, पॉइंट साइज इमेज। So next is when object is between infinity and focus of the mirror, infinity and pole of the mirror, sorry. When object is, second is when object is between infinity and pole of the mirror. So infinity और pole के बीच में जो ऑब्जेक्ट होगा, so उस टाइम पे जो इमेज है वो किस तरह की फॉर्म होगी, ध्यान देंगे। कौन सा लेंस है ये, कन्वेक्स लेंस। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इस तरफ आउटसाइड द center of the sphere. So image will form like this. Let this be P, और P और infinity के बीच में मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करेगी, that will deviate like this, इस तरह से। और सिमिलरली जो रे पोल पे स्ट्राइक करेगी, it will follow angle of reflection, laws of reflection, means angle of incidence is equal to angle of reflection, and where these two rays appears to meet, these rays are appears to meet at this point, इस पॉइंट पे जो है वो इमेज फॉर्म होगी, एंड दिस इमेज इज किस तरह की है, ये एक्चुअल में रेज स्ट्राइक करके डेविएट हो रही हैं like this, but they appears to meet at this point. So here virtual image is forming and it is also erect, बिल्कुल सीधी है। in case of अगर हम कनकेव मिरर में बात करें तो मोस्ट ऑफ द इमेजेस आर इन्वर्टेड, उल्टी इमेजेस बन रही थी, लेकिन यहाँ पे जो इमेज है वो किस तरह की है, इरेक्ट है। सो इरेक्ट इमेज इज वर्चुअल एंड also it is diminished, it is also diminished. So this is all about image formation in spherical mirror। दो mirrors की हमने बात की, that is convex and concave mirror. So kindly note down please।